Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel CS Ansar. This is CS Tuti Mahajan. So today we are going to discuss TDS on e-commerce transactions under section 194O. Let's see. Let's see. TDS on e-commerce transactions under section 194O with effect from 1st October 2020. तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या देखेंगे? What is e-commerce transactions? E-commerce is a business model that lets firms and individuals buy and sell things over the internet. E-commerce, which can be conducted over computers, tablets or smartphones, may be thought of like a digital version of mail order catalog shopping. तो e-commerce क्या है? जहां पर इलेक्ट्रॉनिकली मूवमेंट हम लोग करते हैं, बाय एंड सेल थिंग्स करते हैं ओवर द इंटरनेट. Section 194O. What does this section says? Section 194O shall be applicable on resident and non-resident e-commerce operators making payment to the resident e-commerce participants in relation to sale of goods or services facilitated through its digital or electronic facility or platform. तो e-commerce operators अगर कोई पेमेंट करेंगे e-commerce participants को, तो उस केस में 194O जो सेक्शन है एप्लीकेबल हो जाएगा. एप्लीकेबल फॉर द ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 ऑनवर्ड्स. तो ये सेक्शन कब से एप्लीकेबल होगा? 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल होगा. तो इसके अंदर हमने दो वर्ड स्टडी किए, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स एंड ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स. अब हम दोनों को स्टडी करते हैं कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स क्या है और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ई कॉमर्स ऑपरेटर. An e-commerce operator is a person who owns, operates or manages a digital facility for the sale of goods and services. He is responsible for making payments to the e-commerce participant on such sales. Such as easy way में आपको क्या बताते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, Amazon, स्नैपडील, जोवी, eBay. तो ये सब क्या है? ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं. ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर आप लोग बाय करते हो और जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है वहां पर वो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है, तो उसने उस केस में ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट करनी होती है. ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, अब हम देखते हैं ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट क्या है. An e-commerce participant is a person who sells goods, services or both through an electronic facility provided by an e-commerce operator. He must be a resident of India. तो e-commerce participant क्या है? जो e-commerce operator के ऊपर अपने goods and services वहां पर सेल करने के लिए डालते हैं. जैसे हम फ्लिपकार्ट से हम बाय तो करते हैं, लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो फ्लिपकार्ट के ऊपर डाले गए हैं. तो उस केस में मिंत्रा के ऊपर अलग अलग कंपनी के ब्रांड्स डाले गए हैं, तो वो क्या है? पार्टिसिपेंट. तो ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट करता है उसके लिए. नाउ कम टू द टीडीएस. व्हेन टू डिडक्ट टीडीएस? ई कॉमर्स ऑपरेटर्स शुड डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 1%. तो 1% टीडीएस उनको डिडक्ट करना है किस टाइम पर? At the time of credit of the amount of sale of goods or services or both to the account of an e-commerce participant or at the time of making payment, whichever is earlier. तो सेम वे में TDS कब डिडक्ट होता है? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, whichever is earlier, उस टाइम पर TDS जो है वो डिडक्ट होगा. Amount of TDS: 1% of the gross amount of sale of goods or services or both by such participant on the platform maintained by such e-commerce operator. तो e-commerce operator जो है वो 1% TDS काटेगा ग्रॉस अमाउंट का. Gross amount of sales shall not include the component of GST if separately mentioned on the invoice. तो 1% TDS डिडक्ट करके जो e-commerce operator है वो e-commerce participant को पेमेंट करेगा. Applicability: This section is applicable with effect from 1st October 2020 और date of TDS क्या है? हमने पहले ही बोला 1%. However, for this year the rate is 0.75%. क्यों? क्योंकि 25% की डिडक्शन दी गई है ड्यू टू कोविड की वजह से, तो इस साल के लिए जो रेट है वो क्या है? 0.75%. एक्सेप्शंस टू सेक्शन 194O. अब हम देखते हैं कि 194O सेक्शन के लिए एक्सेप्शंस क्या है. फर्स्ट वन, a ceiling limit of ₹5 lakh is set only for resident individuals and HUF.
Thus, an e-commerce operator is not required to deduct TDS if the amount paid or credited to individuals during a financial year does not exceed ₹5 lakh. अगर 5 लाख तक की पेमेंट है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस डिडक्ट करने की नीड नहीं है. इनकेस अगर 5 लाख से ज्यादा पेमेंट हो जाती है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को 1% टीडीएस डिडक्ट करके उसको पेमेंट करेगा. एंड इफ द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हैज फर्निश्ड हिज पैन और आधार नंबर, और उस ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के पास अपना पैन आधार नंबर होना चाहिए और उसने अपना पैन और आधार नंबर ई कॉमर्स ऑपरेटर को दिया होना चाहिए. 5 लाख तक नो टीडीएस, 5 लाख से ऊपर हो गया तो टीडीएस एट द रेट ऑफ 1%, लेकिन इस साल के लिए 0.75%. If the e-commerce participant does not furnish his PAN or Aadhaar, TDS must be deducted at the rate of 5%. लेकिन अगर उसके पास पैन और आधार नंबर नहीं है तो उस केस में वो TDS उसका 5% डिडक्ट करेगा. सेकेंड एक्सेप्शन, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट बीइंग अ नॉन रेजिडेंट. तो जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है वो रेजिडेंट ही होना चाहिए. अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो उसके ऊपर टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा. पर्पस ऑफ सेक्शन 194O. अब ये 194O सेक्शन क्यों लाया, क्यों गया? इस टाइम पर जो टाइम चल रहा है वो क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म. हर कोई ई कॉमर्स के अंदर है, हर कोई बाय कर रहा है ई कॉमर्स के थ्रू, हर कोई सेल कर रहा है ई कॉमर्स के थ्रू. तो रेवेन्यू के बेस को इंक्रीज करने के लिए 194O सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया. अब हम इसको देखते हैं. The purpose of the introduction of section 194O is to widen the TDS base by bringing e-commerce participants under the tax. Of course, customers prefer digital platform for buying or selling of goods and services because from the seller's point of view, अगर हम seller के point of view से देखें, it requires less cost for creating the setup and less effort for the search of buyers. तो उसको अपनी कोई शॉप, अपना ऑफिस बनाने की नीड नहीं है, वो घर से भी ऑपरेट कर सकते हैं. And from the buyer's point of view, many options are available at one platform and the comparison of products becomes very easy. तो जब हम बाय करते हैं तो हम कोई भी साइट अपनी चेक कर ले, वहाँ पर रिव्यूज भी होते हैं, घर बैठे हुए कितने सारे प्रोडक्ट्स हम चेक कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, कंपैरिजन उसका देख सकते हैं. तो दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है. Conclusion. To conclude, the introduction of section 194O will result in an increase in the revenue for the government by reducing tax evasion. तो जब आपका TDS डिडक्ट हो जाएगा तो अल्टीमेटली वो 26 ES में आ जाएगा. 26 ES में आ जाएगा तो आपको रिटर्न अपनी फाइल करनी पड़ेगी. तो रिटर्न फाइल करेंगे तो टैक्स इवेजन के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे. सो दिस इज द पर्पस ऑफ 194O सेक्शन को इंट्रोड्यूस करने का. यही पर्पस है कि क्यों इस 194O सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया. So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Till then, keep following CS Tuti Mahajan, CS Ansar. Thank you.